ایک انجانی جگہ، اندھیری رات اور چیختی ہوئی میرال۔ آخر کس نے ہمت کی علی خان کی پسند پر ہاتھ ڈالنے کی؟ کیا یہ شہروز کی دشمنی ہے یا پھر اہلیہ کا بدلہ؟ میرال کڈنیپ ہو چکی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سازش کس کی ہے؟ کیا علی خان اپنی محبت کو موت کے منہ سے نکال پائے گا، یا جب تک وہ پہنچے گا میرال کی سانسیں اس کا ساتھ چھوڑ چکی ہوں گی؟ لیکن اصلی کہانی کڈنیپنگ سے شروع نہیں ہوتی۔ اصلی کہانی تو اس جال سے شروع ہوتی ہے جو اس وقت علی خان کے گرد بنا جا رہا ہے۔ میرال کو اٹھا لیا گیا ہے، یہ تو سب دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے سوچا کہ اس کڈنیپنگ کی خبر علی خان تک پہنچی کیسے؟ کیا یہ شہروز کا کوئی نیا پلان ہے کہ علی خان کو کسی ایسی جگہ بلایا جائے جہاں سے اس کا واپس جانا ناممکن ہو؟ کیا یہ کڈنیپنگ صرف میرال کو رستے سے ہٹانے کے لیے ہے، یا پھر اصلی نشانہ علی خان خود ہے؟ اہلیہ جو اب تک خاموش تھی، شہروز کے ساتھ مل کر اتنی گھٹیا سازش کیسے کر سکتی ہے کہ ایک معصوم لڑکی کی عزت اور جان داؤ پر لگا دے؟ اور جب علی خان کو پتہ چلے گا کہ جس میرال کے لیے اس نے پوری دنیا سے دشمنی لی، وہ اس وقت کسی اندھیری کوٹری میں موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے، کیا علی خان وقت پر پہنچ پائے گا، یا پھر جب تک وہ وہاں پہنچے گا تب تک میرال کی موت ہو چکی ہوگی؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے، کیا میرال کی موت ہی علی خان کے گناہوں کا کفارہ بنے گی، یا پھر اس کڈنیپنگ کے بعد علی خان کا وہ سچ میرال کے سامنے آ جائے گا جو علی خان شروع سے چھپا رہا تھا؟ اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا علی خان اپنی محبت کو بچا پائے گا، یا پھر میرال اب علی خان کے بدلے کی بھینٹ چڑھ جائے گی؟ یہ جاننے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ میرال کو شک ہو چکا ہے، یہ دیکھ کر علی خان کو کس طرح سے بڑے بڑے آدمی سلام ٹھوک رہے تھے، اور یہ شک میرال کو پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جس میں دماغ کی کمی ہو اسے کہاں ایسی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اب جیسے ہی میرال کو شک ہوگا تو وہ سب سے پہلے علی خان سے اس بارے میں پوچھے گی۔ علی خان اس بات کو ٹال دے گا اور کہے گا کہ تم جانتی تو ہو کہ میں ہمارے پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا، اور اسی سلسلے میں ان سے بھی ملا تھا، اسی لیے یہ میرے بہت اچھے دوست بن گئے ہیں۔ انفیکٹ یہ تمہاری وجہ سے ہی سب کچھ ہوا ہے، کیونکہ میں تمہاری کمپنی میں جاب کرتا ہوں میرال۔ اور یہ کہنے کی دیر ہے کہ میرال 7ویں آسمان پر پہنچ جائے گی۔ علی ایک بات اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اگر میرال کو چڑھا دیا جائے تو میرال پھر آگے کچھ نہیں سوچتی، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت وہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ جب اس کی تعریف ہو جائے تب میرال کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ یہ سنتے ہی میرال پھر گھر واپس آ جائے گی۔ جیسے ہی اس کی ماں عطیہ میرال سے کہے گی کہ میرال کیسا رہا تمہارا ڈنر، تو میرال بتائے گی کہ آج میرے ساتھ بہت عجیب چیزیں ہوئی ہیں۔ میری ایک دوست مل گئی اور اس کا ہسبینڈ بزنس مین ہے۔ وہ لوگ کسی بڑی کمپنی کے آدمی سے میٹنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان سے میٹنگ ہو ہی نہیں پا رہی تھی۔ لیکن وہ شخص جیسے ہی علی کو دیکھ رہا تھا وہ بھاگتا ہوا علی کے پاس آیا اور اس طرح سے علی سے مل رہا تھا جیسے علی اس کا مالک ہو اور وہ شخص علی کا امپلائی۔ عطیہ کو تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ وہ کہے گی کہ علی جیسے شخص کو کوئی بڑا آدمی سلام ٹھوکے یا آ کر ملے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو علی نے کہا ہو وہ بالکل ٹھیک ہو، اور ایسا بھی ہے کہ تم بہت زیادہ اوور تھنک کر رہی ہو میرال۔ علی تو اتنا اچھا بچہ ہے، کسی سے بھی ملتا ہے تو اسے اپنا گرویدہ کر لیتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ان لوگوں کو بھی اپنا گرویدہ کر لیا ہو۔ میرال کہے گی کہ آپ میری بات سمجھی نہیں، آپ اگر وہاں پر ہوتی تب آپ کو پتا چلتا۔ وہ اتنا بڑا بزنس مین آدمی علی سے یوں جھک جھک کر مل رہا تھا، بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ علی کا نوکر ہو۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو مجھے ابھی تک نہیں پتا، اور علی کچھ مجھ سے چھپا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی احمد اپنی بیٹی سے کہے گا کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اگر تمہیں شک ہے میرال تو تم اس شک کو دور کر لو، کیونکہ تم لوگ بہت جلد بزنس پارٹنرز بننے والے ہو۔ جس طرح سے علی تمہارے کام میں مدد کر رہا ہے تمہیں چاہیے کہ تم اس پر ٹرسٹ کرو، اور اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو تم ضرور تفتیش کر لو۔ یہ سنتے ہی میرال کہے گی کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے اپنے دل کی تسلی ضرور کرنی ہوگی، اور میں صبح ہوتے ہی علی کے گھر جاؤں گی یہ دیکھنے کہ وہ سچ بول رہا ہے یا پھر جھوٹ۔ ایک طرف میرال کو شک ہو چکا ہے کہ علی کوئی عام انسان نہیں ہے، تو دوسری طرف علی کو بھی پتا چل گیا ہے کہ اب وہ اپنی سچائی زیادہ دیر تک میرال سے نہیں چھپا پائے گا، اسی لیے وہ اپنی
अपनी दादी से डिस्कस करेगा और कहेगा कि ये बहुत गलत हो रहा है। आज मेरे ही लोगों के मुझसे मिलने की वजह से मिराल को मुझ पर शक हो रहा है, लेकिन अगर मिराल को मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया तो दो बहुत बड़े नुकसान हो जाएंगे। अगर उसे पता चल गया कि इस सब के पीछे मैं हूँ तो वो कंपनी बनाने का ख्वाब उसी वक्त छोड़ देगी और उसी वक्त उसके सारे के सारे ख्वाब टूट जाएंगे दादी। और दूसरा नुकसान ये होगा कि उसका लोगों पर से ईमान उठ जाएगा। लेकिन दादी, सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर उसके ख्वाब टूट गए तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। दादी अली को समझाएगी कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है अली, तुम बस लोगों से दूर रहो और मिराल के ज्यादा से ज्यादा करीब रहो। जैसे ही उसे तुम पर शक हो गया है तो मुझे यकीन है कि वो चेक करने तुम्हारे घर जरूर आएगी, इसलिए अब तुम भी उस घर में शिफ्ट होने का फैसला कर लो। और जैसा ही दादी ने कहा वैसा ही होगा। सुबह होते ही मिराल सीधी अली के घर पहुंच जाएगी। बॉडीगार्ड जो अपनी बाइक धो रहा होगा उसी वक्त खड़ा होगा। मिराल को देखकर वो डर जाएगा। उसे समझ आ जाएगी कि अली आज सुबह ही उसके घर में क्या कर रहा था, क्योंकि मिराल उससे यहाँ पर मिलने आ रही थी। वो भागता हुआ जाएगा और कहेगा कि सर, मिराल आपसे मिलने आई है। ये सुनते ही अली कहेगा कि बिल्कुल सही कहा था दादी ने, दादी का तजुर्बा बहुत अच्छा है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मिराल को जैसे ही तुम पर शक होगा तो वो तुम्हारे घर सबसे पहले आएगी। मिराल भी बॉडीगार्ड के पीछे पीछे अली के पास पहुंच जाएगी और अली को घर में देखकर हैरान रह जाएगी। उसके सारे शक दूर हो जाएंगे और तब मिराल कहेगी, मैं दरअसल ये चेक करने आई थी कि ये सच में तुम इस घर में रहते हो भी या नहीं, क्योंकि मुझे तुम पर बहुत ज्यादा शक हो रहा था। वैसे भी देखो, हमारा रिश्ता जो भी हो लेकिन उसमें किसी भी किस्म के शक की जगह नहीं होनी चाहिए, और अगर शक आ जाए रिश्तों में तो वो रिश्ते बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए बस तुम्हारा और मेरा रिश्ता कमजोर ना हो तो अपना शक दूर करने के लिए मैं यहाँ पर आ गई थी। और अगर मैं शक दूर करने यहाँ ना आती तो मैं कभी भी आगे ना बढ़ पाती। और अभी तो हमें बहुत ज्यादा आगे तक जाना है अली, अभी तो हमारी नई शुरुआत है और अभी तो हमें बिजनेस पार्टनर्स बनना है। अली कहेगा कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, तुम जब चाहो मेरे घर आ सकती हो। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम मुझ पर शक करने लगी हो। दरअसल मेरी हरकतें थोड़ी सी हैं मशकूक, लेकिन इतनी भी नहीं है कि अब तुम मेरे घर तक ही पहुंच जाओ। और हाँ, अब तो तुम्हारा शक दूर हो गया ना, अब जाओ घर, क्योंकि अभी कुछ टाइम के बाद मैं आता हूँ तो मिलने, हमें साइन करने भी जाना है। जिसके बाद मिराल जैसे ही घर जाएगी तो अली के भी सांस पे सांस आएगा और तब अली फिर से मिराल को लेकर ना सिर्फ प्रोजेक्ट साइन करने पहुंच जाएगा बल्कि अब वो सारा का सारा कंपनी को डिजाइन करने के बाद मिराल को उस घर में लेकर जाएगा जहां पर उसने सब कुछ डिजाइन किया होगा। मिराल तो सब कुछ देखकर चकरा जाएगी। उसे तो समझ नहीं आएगा कि अली खान उसके लिए इतना कुछ कर सकता है। और शायद मिराल को यहीं पर होश के नाखून ले लेने चाहिए थे कि एक शख्स जो उसकी जिंदगी में आया तो उसके बाद मिराल की कंपनी तक बन गई और उससे पहले उसे कोई जॉब देने के लिए भी राजी नहीं था। लेकिन मिराल अभी अपनी सक्सेस एंजॉय कर रही है। उसे नहीं पता कि अब कितनी बड़ी मुसीबत उसकी तरफ आ रही है, क्योंकि अब मलिक साहब सीधा जाकर एलिया से बात करेंगे और कहेंगे कि मालिक का बेटा शहरोज तुमसे मिलना चाहता है। वो भी अली खान का उतना ही बड़ा दुश्मन है जितनी कि तुम। मुझे यकीन है कि तुम दोनों मिलकर बहुत अच्छी गेम प्लान करोगे। जिसके बाद एलिया उसी वक्त शहरोज को फोन घुमाएगी और अपने घर बुला लेगी। जिसके बाद एलिया आएगी और कहेगी कि तुम क्या कह रहे थे, तुमने अली को किसी लड़की के साथ देखा है? शहरोज कहेगा कि जी हाँ, मैंने उसको लड़की के साथ देखा नहीं है, बल्कि उसी लड़की की वजह से हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। वो मुझे इस तरह से मार रहा था उस लड़की के लिए जैसे वो लड़की उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। ये सुनने की देर होगी और एलिया कहेगी कि तुम्हारा झगड़ा उस लड़की की वजह से हुआ। इसका मतलब है कि अली खान की जिंदगी में कोई लड़की आ चुकी है। ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले मेरे वार बहुत ज्यादा खाली जा रहे थे, लेकिन अब जब उसकी जिंदगी में कोई लड़की आ गई है तो मुझे यकीन हो गया है कि अब मेरा कोई भी वार खाली नहीं जाएगा। पता करवाओ जल्द से जल्द कि वो लड़की कौन है और उस लड़की को शहरोज तुम उठाओगे। तुम्हें जो उसके साथ करना हो तुम कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बहुत बड़ी गेम खेलनी होगी। अली मेरे हाथ लग जाए तो अली का बुरा हशर जो भी करना है वो मैं करूंगी, और लड़की तुम्हारे हाथ लग जाए शहरोज तो तुम्हें जो कुछ करना है तुम कर लेना। हमारे अब दोनों दुश्मन एक साथ हैं तो हमें भी हाथ मिला लेना चाहिए। शहरोज कहेगा कि फिक्र की कोई बात ही नहीं है, मैं अभी उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा लूंगा।
पहले मुझे इस बात का पता नहीं था कि वो लड़की और लड़का कौन था, लेकिन अब ये पता चल गया है कि अली खान उस लड़की में इंटरेस्टेड है। इसका मतलब है कि अली खान उस लड़की के आसपास रोज जाता होगा। बस कुछ देर का टाइम दे मुझे, मैं जल्द से जल्द उस लड़की का पता निकलवा लूंगा। एलिया कहेगी कि तुम्हें कोई भी कदम मेरे पूछे बगैर नहीं उठाना। जब मैं तुम्हें कहूंगी तब तुमने सब कुछ करना है। जिसके बाद जैसे ही शेरोज सारी इन्फॉर्मेशन निकालेगा तो उसे पता चल जाएगा कि लड़की का नाम मिराल अहमद है। तब वो एलिया को फोन करेगा और कहेगा कि मुझे ना सिर्फ उस लड़की का नाम पता चल गया है बल्कि उसके घर का एड्रेस भी पता चल गया है। तब एलिया कहेगी कि बस अब अपने बंदे बिठा दो, जैसे ही वो लड़की बाहर निकले उसे उठा लो। शेरोज के कहने पर जैसे ही मिराल अपने घर से बाहर निकलेगी तो उसी वक्त मिराल को किडनैप कर लिया जाएगा और उसे एक अंधेरी कोठरी में लाकर फेंक दिया जाएगा। शेरोज के आदमी उसे फोन करेंगे और कहेंगे कि आपकी बताई हुई लड़की हमने उठा ली है। जिसके बाद शेरोज काफी ज्यादा खुश होगा और तभी एलिया को फोन करके कहेगा कि काम हो गया है, अब दूसरा काम क्या करना है। एलिया कहेगी कि बस अब दूसरा काम ये करना है कि तुमने अपने आदमियों से ये कहना है कि वो अली खान को फोन करे और कहे कि उसकी चहेती मिराल उनके कब्जे में है। शेरोज ये सुनकर डर जाएगा और कहेगा कि अगर हमने ये सब कुछ किया तो अली खान हम तक पहुंच जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि सब कुछ हमने किया है और फिर वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। एलिया कहेगी कि इसकी नौबत ही नहीं आएगी। जैसे ही वो मिराल को बचाने वहां पहुंचेगा तभी उसका खात्मा कर दिया जाएगा। जिसके बाद शेरोज के आदमी ही अली खान को फोन करेंगे और कहेंगे कि आपकी माशूका मिराल साहिबा हमारे कब्जे में है, अगर बचाना चाहते हैं तो बचा लो। ये सुनते ही अली खान सब कुछ फेंकेगा और उसी वक्त मिराल को बचाने के लिए पहुंच जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। मुझे लगता है कि अली खान ना सिर्फ सारे आदमियों को मार भी डालेगा बल्कि मिराल को बचाने में कामयाब भी हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती ये होगी कि मिराल को सच्चाई पता चल जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि अली खान कोई आम इंसान नहीं बल्कि अली खान इंडस्ट्री का मालिक है और उसी की वजह से आज मिराल की ये हालत हुई है। मुझे लगता है कि यहाँ पर मिराल अली खान से दूर हो जाएगी। हो सकता है कि इनका रिश्ता भी यहाँ पर टूट जाए, क्योंकि जिस दिन अली का सच मिराल के सामने आएगा उस दिन मिराल अली से अपने सारे ताल्लुक तोड़ देगी। लेकिन मजे की बात तो तब है कि जब मिराल ये सच्चाई जाकर अपनी माँ को बताएगी तो सबको पता चल जाएगा कि अली कोई और नहीं बल्कि अतिया का अपना भतीजा अली खान है। इसके बाद अली खान क्या करेगा? क्या वो शेरोज और एलिया तक पहुंच जाएगा या फिर एलिया और शेरोज मिलकर एक दफा फिर मिराल पर हाथ डालेंगे? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।